So in today lecture, we'll continue with Bohr model. Till now हम लोगों ने velocity और radius का derivation सीखा है. और velocity हम लोग देख रहे थे, it is directly proportional to z upon n, and the radius is directly proportional to n square by z. Last class में कुछ ऐसे questions भी कर रहे थे हम लोग, कुछ graph भी बनाए थे related to velocity and radius. In today's lecture, we are going to derive the energy, total energy of electron, and apart from energy of electron, we'll do some derivations related to, let's say, potential energy, kinetic energy का relation in Bohr model, and we'll see many more things. So let's say one by one, we'll start. First, it is the derivation of energy, including potential energy, kinetic energy. We'll see some proportionality formulae also. So let's say it is energy of electron in Bohr orbit. Energy of electron in Bohr's orbit. Total energy of electron basically, है ना? In, let's say, Bohr's orbit. As per total energy of electron is concerned in Bohr orbit. Again, I'm repeating the meaning. The typical Bohr orbit may be, this may be nucleus having, let's say, plus Ze charge, and here, let's say, this may be nth orbit in general, nth orbit, or you can say n minus 1th transition, yeah, you can say excited state. Here the radius will be Rn, and if electron is moving in this orbit, ना यहाँ जो radius है वो Rn है, and if electron is moving in this orbit, this velocity may be Vn, and let's say E minus is the electron here. So this may be any typical orbit जहाँ radius Rn है, velocity of electron Vn है, nth orbit है, and let's say electron is revolving around nucleus. So as per total energy is concerned, as per, let's say, total energy of electron is concerned, it should be equal to, let's say, kinetic energy plus, let's say, its potential energy. Total energy of electron in nth orbit should be equal to its kinetic energy plus, let's say, its potential energy. Further, as per kinetic energy is concerned, we already know its formula as it is half mvn square, है ना? Half mv square, और जो velocity है, let's say, वो vn है, velocity of electron in nth orbit, plus, as per electrostatic potential energy is concerned, we already know its formula is k q1 q2 divided by r. जैसे एक तो ये कंफर्म है ना, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेग्लिजिबल. भाई जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं है ना. दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है इट इज नेग्लिजिबल. सो जो पोटेंशियल एनर्जी है टेक्निकली इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर दूं तो ये बन जाता k, ये बन जाता लेट्स से प्लस Ze, ये बन जाता माइनस E, and divided by distance between them is Rn. Distance between them is Rn. Radius of the orbit. So eventually you can say total energy, let's say इसको मैं TEN लिख लेता हूँ. Total energy should be equal to, let's say, half mvn square and plus of, it is minus kze square divided by, let's say, Rn. है ना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. Total energy is nothing but kinetic energy plus electrostatic potential energy.
मुझे यहां तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है इससे रिलेटेड कि भाई टोटल एनर्जी को हम लोगों ने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग को आता था, इट इज हाफ mv स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सेम एज k q1 q2 by r, and it is minus k z e square divided by rn। सर वो आपने e के ऊपर रेड में क्या लिखा है? vn let's say velocity in nth orbit। अच्छा। Now apart from this, let's say जो हम लोग लास्ट क्लास में कर भी चुके थे, it is something we know, force which is nothing but mass into acceleration, है ना, as per obviously their magnitude is concerned। ये होता था force is ma, है ना। यहाँ जो force का वैल्यू था, we know it is k z e square divided by r n square, and it is nothing but mv n square divided by rn। ये जो लास्ट क्लास के डेरिवेशन में हम लोगों ने यूज किया था ना। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट बिहेव एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते तो ये बन जाता k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाई rn, k z e square divided by rn should be equal to mv n square, and from here you can say minus of potential energy should be equal to, let's say, double of kinetic energy। As per this term is concerned, ये वाला जो टर्म है ना, इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली। ये है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, माइनस k z e स्क्वायर डिवाइड बाई rn। सो प्लस k z e स्क्वायर बाई rn विल बी जस्ट ए नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड हाफ mv स्क्वायर विल बी जस्ट अ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जी से रिलेशन बाद में ब्लैक में लिखा है, वो समझ में आ रहा है कि हाउ पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट विद अपोजिट साइन। यस सर। सर कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? सर वो वाला एक बार वापस बता दो। जैसे ये F इक्वल टू ma से है ना, यहाँ से जो F है ये हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लेते। तो जो लास्ट क्लास में डेरिवेशन कर रहे थे कि जो फोर्स है यहाँ, ये कूलम्बिक फोर्स है ना, जो है k z e स्क्वायर डिवाइड बाई rn स्क्वायर आ जाता है ना, k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां से एक rn की पावर तो कैंसिल्ड आउट हो गई, है ना। यू कैन से कि भाई यहां से ये rn का एक पावर इससे कैंसिल्ड आउट हो गया, और मेरे पास बच जाता है k z e स्क्वायर डिवाइड बाई rn एंड इक्वल टू हाफ ये mv स्क्वायर आ गया, है ना, mv n स्क्वायर। जी सर। ये जो पहला वाला टर्म है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और जो दूसरा वाला टर्म है वो डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना। सर वो ग्रीन में कौन सी इक्वेशन लिखी है? ग्रीन में तो हम लोगों ने वापस से यही लिख लिया था ना, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा। यहाँ से फर्दर हम लोग चाहते तो ऐसा लिख सकते थे, काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस, इट मे बी रिटन एज माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। and thus total energy should be equal to minus of kinetic energy equal to half of potential energy as per their magnitude is concerned, let's say। ये जो total energy आ जाता in Bohr's model, it is just a negative of kinetic energy and equal to half of potential energy as per their magnitude is concerned।
ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है? उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो भी साहब। सर हाँ बोलो। क्या ये एग्जाम में आएगा? बेटा ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट बाद में तो आएगा, है ना। बोर्ड्स मॉडल नहीं है तुम लोग के टेस्ट में, है ना। अच्छा ठीक है। हमसे इतना सब लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Great, sir. So till now we know कि ये जो total energy है, it is negative of kinetic energy. So further you can say as per this total energy, और simply let's say इसको मैं En लिख सकता हूँ, है ना। Energy of electron in nth orbit should be equal to minus half mvn square, है ना। It is negative of kinetic energy. ये काइनेटिक एनर्जी का ऐसा नेगेटिव आ जाता है ना, टोटल एनर्जी। और ये जो टोटल था इट मे बी फर्दर इक्वल टू माइनस हाफ m क्या था यहाँ, मास ऑफ, इस फार्मूले में m क्या है, मास ऑफ यस, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास, जिसके लिए हम लोग फाइंड आउट करना चाहते थे, है ना। So it is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg as the mass of electron multiplied by velocity का square. Velocity का square will be 2.18 into 10 to the power 6 times of z upon n, and this much meter per second था। इसका हम लोग स्क्वायर कर दे। ये हम लोग डेरिवेशन लास्ट क्लास में भी किया है ना, स्पीड का, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। फ्रॉम हियर इफ यू सिंप्लीफाई दिस कैलकुलेशंस, अच्छा अगर सब कुछ मैंने SI यूनिट में पुट किया है तो एनर्जी का कौन सा यूनिट आएगा यहाँ? Joules. जूल्स में आ जाना चाहिए। सो ये जो टोटल एनर्जी है En, इट शुड बी minus 2.16 into 10 raised to the power minus 19 z square divided by n square. It is, let's say, एक बार चेक करना कितना आएगा, 10 की पावर एक बार चेक कर लो बस, है ना। मतलब माइनस 19 आएगा कि माइनस 18 आएगा, तो माइनस 18 आना चाहिए, है ना। ये कैलकुलेशंस में बस 10 की पावर चेक करो, इट शुड बी 2.16 into 10 to the power minus 18 आना चाहिए। जैसा 2.18 का जो स्क्वायर होता वो 4 पॉइंट समथिंग हो गया, है ना। 4 पॉइंट समथिंग को हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 पॉइंट समथिंग, एंड 9.1 into 2 पॉइंट समथिंग ये 21 हो गया, है ना। एंड देन ये माइनस 31 में से 12 जाता तो 19, सो 31 18, ठीक इतना ही आएगा, है ना। सो दिस मच ऑफ जूल्स यू कैन से, है ना। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 2.16 into 10 to the power minus 18 times of z square divided by n square in terms of joules. Yes, since ये एनर्जी का ठीक ठाक सा छोटा मैग्नीट्यूड है 10 to the power minus 18 joules में, it is always convenient to convert this into a smaller unit of electron volt. So it is minus 2.16 into 10 to the power minus 18. To convert it into electron volt, ये डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 1.6 into 10 to the power minus 19 से।
So times of z square divided by n square in the unit of electron volt, such that ये जो energy है it comes out to be minus 13.6 z square divided by n square and this much of electron volt. तो तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी याद रखना है और लेट्स से जूल्स में भी याद रखना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. अगेन यहाँ जो z है इट इज एटॉमिक नंबर और n विल बी नंबर ऑफ ऑर्बिट. हाँ ये सॉल्व ये लिखा है बच्चे टोटल एनर्जी. Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी कैन जस्ट फिगर आउट कि भाई ये टोटल एनर्जी ऑर्बिट्स में. हाँ साक्षी बस भाई रुको मैं म्यूट करता हूँ बाकी के लोगों को. नेगेटिव एनर्जी का मीनिंग हम लोग फिर से समझेंगे. अगेन नेगेटिव एनर्जी मींस इट इज लेस इन कंपैरिजन टू रेफरेंस लेवल, है ना. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस ये एनर्जी कम है रेफरेंस लेवल के कंपैरिजन. जैसा लेट्स से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि ये एनर्जी कैसा कैसा दिखेगा इन लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम. लेट्स से फॉर एग्जांपल let's say if it is hydrogen atom, for hydrogen atom we know z ka value will be 1. Here it may be nucleus जिसपे जो total positive charge होने वाला है it is plus E, it is the charge of one proton only. Further, suppose this may be first orbit correspond to n equal to 1. Similarly, this may be suppose second orbit correspond to n equal to 2. Same, let's say this may be suppose third orbit correspond to n equal to 3. This may be suppose fourth orbit correspond to n equal to 4. In general, this may be suppose nth orbit, and similarly and so on. Suppose this is the last orbit n tends to infinity. अच्छा यहाँ हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ सकते थे. फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी minus 13.6 electron volt, as energy is minus 13.6 divided by n square, है ना. z का वैल्यू तो 1 है. कैन यू सजेस्ट मी सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ? सेकंड ऑर्बिट का कितना हो जाएगा एनर्जी? 3.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब minus 3.4 ना शायद, है ना. minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Yes, sir. We know कि ये जो टोटल एनर्जी है En is minus 13.6 divided by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, जहाँ z का वैल्यू 1 है ना. अच्छा अब यहाँ n का वैल्यू 3 पुट कर दो तो कितना आएगा? minus 1.51. minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसा फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी कितना आएगा? वहां n का वैल्यू 4 पुट कर दो
So it is minus of 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. In general, you can say nth orbit का energy will be minus 13.6 divided by n square electron volt. और ये जो last orbit है ना, जो n tends to infinity वाला orbit है, last possible orbit, ये suppose है ना, ये last possible orbit में energy कितना होगा? zero इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0. एक तो ये समझ में आया कि भाई ये टोटल एनर्जी है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी. अच्छा, पहले मुझे बताओ, एज पर ग्राउंड स्टेट से लेकर बाहर तक, लेट्स से यहां से लेकर यहां तक, ये एनर्जी इंक्रीज हुआ है कि एनर्जी डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज. एनर्जी इंक्रीज. So you can say energy increases या increase in energy. Increase in energy, है ना. Obviously ये ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की डायरेक्शन में जाता गया है और इवेंचुअली बाद में जाके जीरो बन गया है ना. So from let's say minus 13.6 up to 0, this energy will continuously increases. नाउ हम लोग कुछ गैप्स भी याद रख सकते थे इससे रिलेटेड, जैसा फॉर एग्जांपल द एनर्जी गैप बिटवीन लेट्स से फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट. डू यू थिंक इट इज नथिंग बट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? भाई 13.6 से हम लोग 3.4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना. Similarly, this energy gap, can you suggest me first and third orbit के बीच का energy gap कितना है? 1.89. कितना है? 1.89. The 12.89 ऐसा? 12.09. 12.09. So it is 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट एंड थर्ड का, है ना. मतलब हम लोग चाहते तो ऐसे हर एक ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना. ऐसे मैं फिर से रिपीट कर रहा था कि जो टोटल एनर्जी है इट इज minus 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और जो लास्ट ऑर्बिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसके लिए एनर्जी विल टेंड्स टू 0. तो यू कैन से ये जो टोटल एनर्जी है उसके लिए रेफरेंस लेवल क्या है? कौन सा ऑर्बिट है रेफरेंस इसका? रेफरेंस मींस जहां एनर्जी हम लोग ने 0 एज्यूम कर लिया है ना. सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑर्बिट इज ए रेफरेंस, है ना. रेफरेंस की भाई कहां एनर्जी सबसे ज्यादा है वो 0 है, तो बाकी सारे एनर्जी निगेटिव में होंगे ऑब्वियसली, है ना. ये जो एनर्जी हम लोगों ने लिखे हैं इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है? बचा है अभी कोई भी बच्चा डाउट पूछ सकते हो तुम लोग अभी. अंशुमन क्लियर है बेटा? हाँ सर, हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होता है ना? यस, हाइड्रोजन में तो एक ही बेटा, हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट नहीं, यू कैन से हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना. हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जी इट कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द पॉसिबल ऑर्बिट. हाँ देखो, ये अच्छा बच्चा था, इसने डाउट पूछा. किसी और बच्चे को डाउट कुछ है? अनुष्का जैन, बेटा कुछ डाउट है तुम्हें? सर. हाँ पूछो. सर नहीं है. अच्छा नहीं है. हाँ, आयुष सिंह, ध्रुव झा, हाँ कुछ डाउट तो पूछो, है ना. सो लेट्स से आई एम रिपीटिंग हियर, ये जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एज आई मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू लास्ट ऑर्बिट, लेट्स से, है ना. तो फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
ऐसा फर्स्ट से थर्ड पे जाने के लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इवेंचुअली हम लोग सारे ऐसे कैलकुलेशन कर भी लें, है ना, वही डिफरेंस निकाल लेंगे ना, क्या परेशानी, मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, है ना। ओके, सो ये डायग्राम ड्रॉ किया है तुम लोगों ने जो बोर्ड पे है? यस सर। सर 2 minutes. इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ग्राफ भी समझने की कोशिश करेंगे। एनीवे, इन मीन वाइल कुछ बच्चे लिख रहे हैं, यू नो सर, इसमें ये डिफरेंस कितना है सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट के बीच में? सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट के बीच का गैप 2.5 है। 2.5 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, हम लोग एनर्जी बहुत सारे तरीके से सप्लाई कर सकते थे इलेक्ट्रॉन को। आइदर हीटिंग हाइड्रोजन एटम इज वन ऑफ द ऑप्शन, हाइड्रोजन एटम इज एक्सपोज टू सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता था। अपने आप से इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहना चाहेगा इसमें? ग्राउंड स्टेट में, है ना। नाउ डिपेंडिंग ऑन कितना एनर्जी हम लोग सप्लाई कर पाते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ हीट और विद द हेल्प ऑफ एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू हायर ऑर्बिट, है ना। नाउ लेट्स से इफ यू सी इट्स ग्राफ, है ना, रिलेटेड ग्राफ हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए देख लेते हैं, जहां Z का वैल्यू 1 है। सो फॉर हाइड्रोजन एटम, if you see the graph related to hydrogen atom, in the case of hydrogen atom, suppose on this axis, let's say if we have energy, total energy En, and on this axis let's say it is N, number of orbit, deliberately मैंने ग्राफ नेगेटिव में बनाया है एनर्जी को, है ना। तो यहाँ जो एनर्जी है वो लेट्स से 0 है ना, और अब बाकी सब जगह जो नीचे रहने वाला है वो एनर्जी नेगेटिव में रहने वाला है। Here correspondingly you can say this line is correspond to n equal to 1. Here this may be, let's say, correspond to n equal to 2. It is, let's say, n equal to 3. Same, let's say n equal to 4 and so on. Equal distance पे, equal spacing पे हम लोगों ने n equal to 1, equal to 2, 3, 4 किया, है ना। ये ग्राफ कैसा होने वाला है टिपिकली? मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, किस टाइप का ग्राफ होने वाला है? एनर्जी वर्सेस एन। अक्षर बेटा पैराबोला नहीं हो सकता है क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ नहीं है ना। विल सी इट इज नोन एज समथिंग मॉडिफाइड हाइपरबोला, और ये ग्राफ आएगा, देखो इसका, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है क्योंकि इसमें इस बार n स्क्वायर वाला टर्म, but it will be something hyperbolic graph. So on increases n, energy will increase, है ना, एक तो ये confirm है। So on increasing n, this energy En will confirmly increase। जैसा ये जो एनर्जी था वो हो गया था E1, इसका वैल्यू कितना था? -13.6, है ना। सिमिलरली यहां जहां इंटरसेक्ट किया था ये एनर्जी हो जाता E2 विच इज -3.4। सेम यहां जहां इंटरसेक्ट किया है ये एनर्जी हो गया था E3। सेम लेट्स से यहां जहां इंटरसेक्ट किया है ये एनर्जी हो जाता E4। So this energy will be E4। अच्छा, अभी हम लोग को ये E1, E2, E3, E4 के वैल्यूज भी पता है टेक्निकली, है ना।
तो जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा था n इक्वल टू 2 को, n इक्वल टू 3 को, n इक्वल टू 4 को, वो हम लोग ने देख लिया एनर्जी। It's a more important thing in this graph. Can we say E2 minus E1 is always more than, let's say, E3 minus E2 and so on. So this energy gap is maximum, then bigger than this and then bigger than this. तो ये जो एनर्जी गैप है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है। ये जो एनर्जी गैप है इट विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज। So simply you can add one more line here. As n increases, energy gap between orbits, it is continuously decreases. नहीं, जो एनर्जी गैप था बिटवीन ऑर्बिट वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can do a few easy आसान से questions based on this कि भाई एनर्जी को हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे, something like this. और एक ग्राफ भी ड्रॉ किया है तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the first question based on this is, if let's say potential energy of electron in helium plus is minus 6.8 electron volt, then find out excited state, then find out excited state of electron. If potential energy of electron in helium plus is minus 6.8 electron volt, then find out excited state of electron. The first excited state. First excited state. चलो भी देखते हैं, शायद वही आंसर होना भी चाहिए। एक तो मुझे ये पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जो टोटल एनर्जी है विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी should be equal to minus 6.8 divided by 2 and should be minus 3.4 electron volt, है ना? तो ये है टोटल एनर्जी and this total energy का फार्मूला we know it is equal to minus 13.6 z square divided by n square and it is equal to minus 3.4. Further it is equal to 13.6 times of helium के लिए z का वैल्यू हो जाता 2 and you can just find out the value of n. It is n square and it is equal to 3.4. Do you think यहाँ से शायद मेरे पास जो n का वैल्यू आएगा वो 4 आएगा? बट अगर ये
n का वैल्यू जो यहां से कैलकुलेट करने के बाद आता n विल बी 4। अच्छा, अगर n का वैल्यू 4 है तो इसका एक्साइटेड स्टेट क्या है? ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यस, इट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n equal to 4 means ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना, तो योर आंसर शुड बी 3। ये क्वेश्चन क्लियर हुए तुम लोगों को? थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैसे पता चला? बेटा अगर मेरे पास फोर्थ ऑर्बिट है तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता था ना, सिंस फर्स्ट ऑर्बिट इज ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, थर्ड ऑर्बिट इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो फोर्थ ऑर्बिट मींस इट विल बी थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना। इज इट क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन का आइडिया है, क्लियर है ये क्वेश्चन तुम लोगों को? यस सर। सर एक डाउट है हाँ पूछो। सर। -1.3.6 -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर लिखा है इज इक्वल्स टू -3.4 आया। हाँ हाँ, और उसके नीचे सब पॉजिटिव में लिखा है। अरे माइनस माइनस कैंसिल आउट कर ले। ओके सर, ये ऐसा कर है ना, ठीक। अभी ठीक है? यस सर। So let's say the next question related to this is find out, let's say it is ionization, find out ionization potential, let's look at the IP, find out ionization potential of, find out ionization potential of hydrogen atom assuming initially electron present in ground state। और ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग होता था, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो मीनिंग होता था, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सर 10.2। 10.2 नहीं बेटा, 10.2 नहीं है उसका आंसर। टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यस इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। यस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा देख सकते हो, समझ भी सकते हो। इट इज हाइड्रोजन, इसको कुछ एनर्जी हम लोगों ने सप्लाई किया एंड इट कैन कन्वर्ट इनटू H प्लस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस, एंड इट विल बी H प्लस गैस। So the minimum energy we have to supply this is ionization potential है ना। कितना एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को नॉक्ड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए है ना। अच्छा, here you can simply assume initially electron present in ground state means यहाँ n equal to 1 है, ऐसे और बहुत सारे ऑर्बिट्स थे, बट सपोज इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। ये दूसरा वाला सिस्टम है, यहां हम लोग एज्यूम कर सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम। यहां इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आ गया होगा? n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो गया होगा। तो स्टार्टिंग में जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और फाइनली जो टोटल एनर्जी है मिनिमम इट इज टेंस टू 0, है ना. फाइनली लेट्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड टू बी नेग्लिजिबल. Then this ionization potential should be equal to energy required to excite the electron from first orbit to infinite orbit, and comes out to be 13.6 electron volt. It is found to be, let's say, 13.6 electron volt. अच्छा, ये धीरे धीरे वैल्यूज शायद याद भी हो जाएंगे. 13.6 है ना, जो डिफरेंस है इन्फिनिटी ऑर्बिट का एंड फर्स्ट ऑर्बिट का. सो प्रैक्टिकली यू कैन से फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम आयोनाइजेशन potential will be 13.6 electron volt. ये याद भी रख सकते हो तुम लोग. And another similar term you can say it is first excitation potential. It's a first excitation potential means ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक आने के लिए कितना एनर्जी यू हैव टू सप्लाई. इसमें कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये वाला जो आंसर है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना. सिमिलरली सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना. मींस ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक लाने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई. सो हाइड्रोजन एटम है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते थे, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते थे. Is it clear now? Ionization potential, first excitation potential, second excitation potential. Okay, let's say we can do one more question related to this. Yes, ये जो Bohr model है, it is applicable या it work only for single electron system. ना, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए applicable है ये, है ना? So the next question is, let's say for lithium gaseous converting to lithium, let's say 3+ gaseous and removal of 3 electron. Lithium is converting to lithium 3+ and let's say +3 electron. इसको करने के लिए you have to supply, let's say suppose you have to supply 200 electron volt energy. लिथियम को लिथियम 3+ +3 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए you have to supply 300 electron volt energy, and its IP1 is given as, let's say, 15 electron volt. Its IP1 is 15 electron volt. IP1 का मतलब है
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई. देन फाइंड आउट इट्स IP2 and IP3. मीन्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई, एंड सिमिलरली थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई. कोई बच्चा मुझे बता भी सकता है कि हम लोग ट्राई कैसे करेंगे इसको? सेकंड का 3.75 है. 3.75 कैसे पता चला? वैसे नहीं है उतना, मैं ऐसे जानना चाहता था क्यों, कैसे पता चला बेटा? सर मैंने एक मिनट. हाँ, IP1 मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना. बेटा IP1 तो दिया हुआ है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई. बेटा 130.6 कैसे आएगा भाई? अच्छा मैं थोड़ा सा एक समझाता हूँ ना. ये IP1 ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक लाने के लिए नहीं है ना. IP1 मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई. IP2 मींस सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई, एंड IP3 मींस थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई, सच दैट इफ यू सी एडिशन ऑफ IP1 प्लस IP2 प्लस IP3, ये एडिशन किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन प्लस थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हाउ मच एनर्जी वी हैव टू सप्लाई है ना. सो यू हैव टू सप्लाई लेट्स से 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा फर्दर कैन वी से 4 IP3. For IP3 this equation will be lithium 2 plus gaseous will convert into lithium 3 plus gaseous plus electron. IP3 का मतलब है 2 electron is already removed and you have to knock out third electron. IP3 है ना. IP3 means थर्ड इलेक्ट्रॉन को नॉकड आउट करने के लिए हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई. अच्छा लिथियम 2 प्लस के लिए हम लोग बोर्स मॉडल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. ना लिथियम 2 प्लस कंसिस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो हियर कैन यू फाइंड आउट IP3 का वैल्यू कितना हो जाता? डू यू थिंक इट विल बी नथिंग बट 13.6 into 3 का स्क्वायर, लिथियम का Z का वैल्यू है ना. IP3 ना, IP3 के लिए यू कैन अप्लाई बोर्स मॉडल सिंस लिथियम 2 प्लस कंसिस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. माइनस नहीं होगा. बेटा माइनस नहीं होगा, उतना एनर्जी तो इवेंचुअली हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा ना भाई. ग्राउंड स्टेट में इसका नेगेटिव होगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जा रहा होगा, तो डिफरेंस यू हैव टू सप्लाई है ना. तो ये हो जाता था कुछ 122.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो पॉइंट इज क्वेश्चन में मुझे IP1 ऑलरेडी गिवन था. सर Z²/n² होता है ना? हाँ बेटा बिल्कुल n² होता है. तो हम लोग जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कौन से ऑर्बिट में बचेगा? ग्राउंड स्टेट में. हाँ. तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? -13.6 टाइम्स ऑफ Z² डिवाइड बाय 1 है ना. सर ग्राउंड स्टेट में कैसे बचेगा थर्ड इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करेगा ना ये तो पहले है ना. जैसा अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो लिथियम देखो मुझे ऐसा दिखेगा ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है ना. ये है लिथियम सपोज है ना.
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला उड़ जाता IP1 के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक चला जाता, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो जाता वो n=1 से ही जाएगा ना। ओके सर। अच्छा, n=1 में जो टोटल एनर्जी था इट इज -122.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इवेंचुअली जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है तो इसका एनर्जी 0 हो गया है ना। सो द डिफरेंस यू हैव टू सप्लाई, है ना। सो ये IP1 था, सिमिलरली यू कैन से इट इज IP3, ये IP3 हो जाता है ना। यस, एंड देन IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 का एडिशन 200 होना चाहिए था, तो यहाँ से IP2 का वैल्यू भी आ जाता है। कितना आ जाता है IP2 का वैल्यू? 62.5। 2.5 कितना? 62.5। तो दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी लेट्स से IP2 का वैल्यू। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 यू हैव टू सप्लाई। तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी क्वेश्चन में गिवन था इट इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। IP3 के लिए यू कैन अप्लाई बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल क्यों अप्लाई कर सकते थे? क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, लिथियम 2+ में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, है ना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी बच्चे को कुछ डाउट है? सर हाँ, बोलो। सर अगर ये क्वेश्चन उल्टा दिया रहेगा, जैसे मतलब IP3 या IP2 दिया रहेगा, तो फिर बाकी कैसे फाइंड करेंगे? बाकी नहीं कर सकते थे बेटा, है ना। I1 फाइंड आउट करने का कोई तरीका नहीं है ना। अगर मतलब I1 प्लस I2 दोनों अगर फाइंड आउट करने हैं तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। मानस बच्चे, ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता था वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं होता था, है ना। वो एक्साइटेशन पोटेंशियल होता था। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक आने के लिए एनर्जी जो सप्लाई करना पड़ता है वो एक्साइटेशन पोटेंशियल है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन को नॉकड आउट करने के लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, रिमूव करने के लिए, है ना। कुछ हम लोग प्रोपोर्शनलिटी फार्मूले भी पढ़ सकते हैं। जैसा लिखा है क्वेश्चन तुम लोगों ने, ये वाला लिथियम वाला। यस सर। Yes. So the next is, let's say we can just see few proportionality formulae. हम लोग समझेंगे इस प्रोपोर्शनलिटी फार्मूले का क्या यूज है, कैसे यूज कर पाएंगे। जैसा फर्स्ट वन, we know, let's say velocity of electron, let's say it is Vn, है ना। velocity of electron जिसको हम लोग लिख रहे थे Vn। अच्छा, ये तो हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया है कि Vn किसके प्रोपोर्शनल था? ये Z/N के, है ना। सर। हाँ बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में अगर IP2 निकालना हो, हाँ, तो 13.6 इंटू 3 स्क्वायर ही करेंगे ना, क्योंकि Z स्क्वायर बेटा IE2 के लिए हम लोग बोर मॉडल अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब IE2 कैलकुलेट कर रहे होंगे तो लिथियम ऑलरेडी कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना। तो IE1 या IE2 के लिए हम लोग बोर मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते थे, है ना। तो सर उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? बोर मॉडल तो नहीं होगा बेटा, हम लोग कुछ पढ़ेंगे, मॉडिफाइड बोर मॉडल, स्लेटर रूल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऐसा फंडा है लाइफ, है ना। बट मतलब बोर मॉडल सिर्फ Li2+ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना।
सो Okay, sir. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है. दिस इज प्रोपोर्शनल. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू z by n. और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता था इसमें? 2.18 into 10 to the power 6. 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड. ऐसा ही सिमिलर टू वेलोसिटी वी नो रेडियस. रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेट्स से rn, और इसका भी फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया कि rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z. और बच्चे यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था? 0.529 into 10 to the power minus 10. वेरी गुड है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, है ना. सिमिलरली लेट्स से हम लोग ने जो फार्मूला अभी तक डिराइव किया, इट इज टोटल एनर्जी. लेट्स से टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट्स से सपोज इसका सिंबल में लिख लेता हूं En. सो ये जो En था ये किसके प्रोपोर्शनल था? ये भी हम लोगों ने देखा, En इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. अच्छा, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था? -13.6. तो जो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो माइनस था, -13.6. ऐसा ही लेट्स से सपोज फोर्थ इज सपोज इट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं इसको KEN लिख लेता. इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं. एक तो मैं लिख सकता था क्या, KEN इज जस्ट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, या मैं इसको लिख सकता था हाफ mvn स्क्वायर, है ना. दोनों से हम लोग बता सकते थे कि ये जो KEN है वो किसके प्रोपोर्शनल होता. देखो, अगर वेलोसिटी से बताते तो भी हम लोग लिख लेते, है ना. वेलोसिटी अगर z अपॉन n के प्रोपोर्शनल है तो v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी का स्क्वायर z square upon n square. सो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, है ना. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. इवन अगर हम लोग टोटल एनर्जी से भी रिलेट करते तो भी आंसर मेरे पास सेम ही आता. अच्छा, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है? 13.6 ही होना चाहिए. 13.6 है ना, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. टोटल एनर्जी में -13.6 था. यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होना चाहिए इट इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन. ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? सॉरी, लिखा है बेटा, लास्ट वाले में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को बोल सकते थे हाफ mv स्क्वायर. तो या तो मैं v स्क्वायर का प्रोपोर्शनलिटी देख लूं, वेलोसिटी z बाई n के प्रोपोर्शनल था, तो v स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, है ना. या मैं बोल सकता था काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. तो जो z स्क्वायर बाई n स्क्वायर टोटल एनर्जी के लिए था, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वही आ जाता, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. अभी क्लियर है ये? सर डाउट है. हाँ, पूछो. सर अगर हम लोग z के वैल्यू बढ़ाते तो एनर्जी कम होता है ना? अगर हम लोग z का वैल्यू बढ़ाएंगे तो पक्का एनर्जी कम होगा, क्योंकि कम होगा कि बढ़ेगा? सर नेगेटिव साइन है ना. यस, जितना हम लोग z का वैल्यू बढ़ाएंगे उतना एनर्जी कम होगा, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास में आ जाते हैं, है ना. जितना हम लोग जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होगा. सर तो फिर मतलब n स्क्वायर बाय z स्क्वायर होना चाहिए ना? क्यों होना चाहिए? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर सही तो है.
सर Derivation लेकिन होती है ना, नेगेटिव में बाद में चेंज होता है ना। क्या अब तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी तो सेम ही रहेगा, यस राइट? सर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है ना। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल तो रहेगा ना z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के, या टोटल एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ऑल्दो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नेगेटिव, है ना। यस सर। ऐसा ही बेटा ये चारों लिखा है तुम लोगों ने, वेलोसिटी, रेडियस। Yes, sir. ओके, सो द नेक्स्ट वन, let's say third is fourth is, you can say, angular momentum. एंगुलर मोमेंटम वी ऑलरेडी नो, इसका जो सिंबल था इट इज एल वेक्टर, है ना। और ये जो एंगुलर मोमेंटम था इट इज MVR, या बोर मॉडल में ये क्या था बेसिकली, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये तो आसान है शायद, किसके प्रोपोर्शनल है ये एंगुलर मोमेंटम? कैन वी से इट इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू n, h अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, h डिवाइडेड बाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल टू n आ गया, है ना। सर उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? अरे h डिवाइड बाई 2 पाई का वैल्यू फाइंड आउट कर ले यार, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसको 2 पाई से डिवाइड कर ले, सर कर लेंगे। निकल जाएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वन, you can say it is centripetal acceleration. Centripetal acceleration of electron. Let's say उसको मैं AN लिख लेते हैं, है ना। Centripetal acceleration. We already know this centripetal acceleration का जो magnitude है, it is VN square divided by RN. तो चलो जल्दी से मुझे बताओ, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? n square by rn. Velocity. बेटा Sir, z वेलोसिटी square upon n square. z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N square. नहीं भाई, ध्यान से देखो, Z square divided by n cube. नहीं, और अच्छे से बताओ। Z cube upon n to the power 4. वेरी गुड, है ना, ये बच्ची ने अच्छे से बताया, है ना। अच्छा, ऐसा होना भी चाहिए था यार, उसमें बहुत बड़ा कैच नहीं होना चाहिए, और तुम लोग को जल्दी समझना भी चाहिए था। कैन वी से वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n, तो उसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर y z, so overall it will be proportional to z cube divided by n raised to the power 4. ये समझ में आ रहा है? ये तो मुश्किल सा नहीं किया मैंने। ऐसा ही नेक्स्ट वन इज, you can say it is force of attraction. Force of attraction between electron and nucleus, and we know force is nothing but mass into acceleration. So can we say as per force का magnitude is concerned, it is also proportional to z cube divided by n raised to the power 4, जो एक्सेलरेशन के लिए होना चाहिए था, है ना। जो एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनलिटी है वही फोर्स के लिए भी आ जाना चाहिए था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. So fifth one, yeah, sorry, seventh. Seventh one is revolution frequency. Revolution frequency, let's say small f. So as per revolution frequency is concerned, it is number of revolutions. Number of revolutions of electron per unit time, है ना? It is number of revolutions per unit time. And number of revolution per unit time can be further equal to, हम लोग ऐसा लिख सकते थे, let's say distance traveled per unit time divided by distance traveled per revolution. अच्छा, ये समझ में आ रहा है तुम लोग क्या लिखा है मैंने? Revolution frequency is number of revolution of electron per unit time, which may be equal to distance traveled per unit time divided by distance traveled per revolution. Now, for example, let's say in this circular orbit, suppose in the circular orbit, if any object is moving here with the velocity of, suppose, 4 meter per second, suppose, and as per this circumference is concerned, circumference 2 मीटर का है, suppose, है ना? ये जो पूरा circumference है वो 2 मीटर का है और velocity 4 मीटर पर सेकंड है. So how many revolution per second? 2. अच्छा, 2 कैसे आया होगा? हम लोगों ने किया है, इस वेलोसिटी को सीधे सीधे डिवाइड कर दिया है सर्कमफ्रेंस से, है ना? यही किया ना हम लोगों ने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर रिवॉल्यूशन. तो हम लोग सीधे सीधे वेलोसिटी को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दे बस, है ना? तो ये आ जाता हम लोग के पास रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम. यूनिट ऑब्वियसली हम लोग हर्ज बोल सकते हैं, या रिवॉल्यूशन पर सेकंड हम लोग बोल सकते हैं, या पर सेकंड हम लोग बोल सकते हैं, है ना? अच्छा, इस वाले केस में मुझे जल्दी से बताने की कोशिश करो कि ये किसके प्रोपोर्शनल रहने वाला है? Z square by n cube. Z square by n cube. वेरी गुड. इट विल बी z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब, है ना? तो यहाँ जो रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब. मैं वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दूंगा और रेडियस का, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब. एक हम लोग और समझ लेते हैं इससे रिलेटेड. So 8th is time period of revolution.
टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, लेट्स से इसका सिंबल हम लोग लिख लेते हैं Tn. टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मींस टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, है ना. टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन. एंड कैन वी से ये जो टाइम पीरियड है T, it should be, time period T should be reciprocal of revolution frequency, and thus you can say time period will be proportional to n cube divided by z square. This time period should be proportional to n cube divided by z square. अच्छा, ये सब क्लियर है. प्रोपोर्शनलिटी फार्मूले, किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग बनेंगे, इसके बेस पे क्या है हम लोग देखते हैं, है ना. पहले इतना लिखा है तुम लोग ने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तक या प्रोपोर्शनलिटी फार्मूले तक. तो 3 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी. लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज, if revolution frequency of electron in third orbit, if revolution frequency of electron in third orbit of helium plus is x, then find out revolution frequency, then find out revolution frequency of electron in second orbit, of lithium 2 plus. So you have to find out your answer in terms of x. तुम लोग ये आंसर x के टर्म्स में ही बताना है ना. If revolution frequency of electron in third orbit of helium plus is x, then find out 27/8x. 27/8 नहीं बच्चे, गलत है. कोई और अच्छा बच्चा आंसर बताओ. Obviously you have to find out your answer in terms of x only, है ना. So 1/x. 1/x तो पक्का नहीं है भाई. Sir, 81x/16. नहीं 9/8x. नहीं, कुछ और अच्छा बच्चा आंसर बताओ. अच्छा, मुझे ये फार्मूला तो पक्का अप्लाई करना है कि रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब, है ना. ये फार्मूला यूज करेंगे ना. सर 243x/32. यस सर, ये आंसर होना चाहिए 243x/32, है ना. कैसे हो सकता था, हम लोग लिख भी सकते थे कि भाई यहां से हम लोग लिख सकते थे f1 डिवाइडेड बाय f2. f1 डिवाइडेड बाय f2 शुड बी नथिंग बट z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का क्यूब, है ना. ये हो जाता रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसीज का रेशियो.
अब यहाँ हम लोग ये पुट कर लें बस। लेट्स से ये सपोज हम लोग लिथियम 2+ के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं और हीलियम प्लस के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। लिथियम के लिए Z का वैल्यू है 3, सो ये 3 का स्क्वायर, और उसके सेकंड ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना था तो 2 का क्यूब। हीलियम प्लस के लिए Z का वैल्यू है 2, सो इट इज 2 का स्क्वायर, और उसके थर्ड ऑर्बिट के लिए गिवन था तो इट इज 3 का क्यूब, such that ये आ जाता 3 divided by 2 raised to the power 5, which out to be 243 divided by 32. Yes, sir. And from here, frequency of lithium 2+ should be 243 divided by 32 times of revolution frequency of helium plus, which is x. तो शायद मैं ऐसा कुछ रेशियो लेके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। So next question is, for let's say given Bohr's atom जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लेट्स से सपोज यू कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मोड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड का क्यूब इक्वल टू z raised to the power x and n raised to the power y. Then find out x minus y. For a given Bohr's atom, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड का क्यूब, सपोज वो z रेज टू द पावर x एंड n रेज टू द पावर y है, देन यू हैव टू फाइंड आउट x माइनस y. सर 2 अभी देखते हैं, इसका आंसर नहीं पता है मुझे, ये तो अभी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ना। नहीं देख सर लेंगे। 1 तो ये तो कंफर्म है, शायद आएगा तो कोई इंटीजर ही है ना। So as per this term is कितना है, 1 है 2 है, क्या है आंसर? 1. So ये प्रोपोर्शनलिटी, ये एक्सेलरेशन का स्क्वायर करना है हम लोगों को और टाइम पीरियड का क्यूब करना है. So it should be proportional to, ये होता था मेरे पास z क्यूब डिवाइडेड बाई n रेज़ टू द पावर 4 का स्क्वायर करना सर था. -1 And it is n sir, cube -1. divided- सर -1 सर -1 अच्छा ठीक है. और ये हम लोग के पास हो जाना था n क्यूब डिवाइडेड बाई z स्क्वायर का ये क्यूब कर देना है ना. सो इट इज लेट्स से एक्सेलरेशन एंड जो मेरे पास टाइम पीरियड है वो सब लिख लिया. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू z का पावर. z का पावर यहाँ हो गया 6 और वहां हो गया 9 एंड 9 प्लस, अच्छा ये हो गया यहाँ 9 और नीचे यहाँ कितना है, अच्छा ये तो 0 हो गया, z का पावर है ना. डू यू थिंक ये जो z का पावर है वो 0 है यहाँ, 3 Yes, का sir. स्क्वायर, सो z का पावर 0 आ गया एंड n का जो पावर है लेट्स से इट इज 1. 9 माइनस 8 है ना. तो यहाँ x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है एंड दस x माइनस इज -1. ठीक, तो इसका -1 आएगा है ना. अच्छा ये कंफर्म है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग तभी कर पाएंगे
इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग तभी कर पाएंगे भाई जब ये वैल्यूज, मतलब हम लोग को ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये सब याद है, तो है ना। धीरे धीरे याद हो जाता है, सब बच्चों को याद हो जाएगा, तुम लोगों को भी हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को कुछ डाउट है? Okay, next question is, let's say for, you can say Bohr's model, for Bohr's atomic model, angular momentum L का जो मैग्नीट्यूड है, it is proportional to you can say xth root of Rn radius. Then you have to find out the value of x. सर x2 है। x2 वेरी गुड, है ना। x का वैल्यू 2 आना भी चाहिए। सो यहाँ आंसर में भी हम लोग लिख सकते थे कि हाउ x का वैल्यू विल बी 2 सिंस वी नो एंगुलर मोमेंटम, अच्छा, इट इज इक्वल टू mvn एंड rn। फिर पहले मुझे ये बताओ, कैन वी से कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू rn, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? एंगुलर मोमेंटम अगर mvr है तो हम लोग लिख सकते थे क्या एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू r? Yes sir. भाई अगर ऐसा लिख लेते तो ये आंसर तो नहीं होता, और हम लोग नहीं लिख सकते बेटा। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि m इंटू v कॉन्स्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी रेडियस के अकॉर्डिंगली चेंज होती है ना। तो हम लोग ये तो पक्का नहीं लिख सकते, है ना। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vn नहीं है या rn नहीं है ना, क्योंकि जो vn है, vn कांस्टेंट नहीं है बच्चे, है ना, वो भी तो रेडियस पे डिपेंड करता है ना। बट श्योरली यू कैन से एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहां से हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू n, है ना, क्योंकि h अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है। More important thing is we already know this Rn is proportional to n square. So from these two, can we say angular momentum will be proportional to root of Rn? अगर ये रूट है तो यहाँ ये जो x का वैल्यू है ना, वो x का वैल्यू हो जाता 2, स्क्वायर रूट है बेसिकली, है ना। वैसे ये क्वेश्चन समझा है तुम लोगों ने? नहीं समझा। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। समझा सर एक बार फिर से। बेटा मैं सिर्फ ये बता रहा था कि यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है ना। जैसे अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट होता तो हम लोग बोल पाते कि एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rn है, बट वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है ना। तो यू कांट से कि एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, rn, बट थ्रू अनदर इक्वेशन वी नो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जिसमें से h अपॉन 2 पाई तो पक्का कांस्टेंट है। अगर h अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n।
we already know the radius is directly proportional to n square. So from n here square by z होता है ना? z होता है, but let's say z किसी भी n, हम लोग n में इंटरेस्टेड है, रेडियस कैसे वेरी हो रहा है. Obviously z is independent, z independent, जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ z है ना. एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ z है, तो हम लोग सिर्फ n की पावर देख सकते हैं बस, है ना. तो यहां से हम लोग बोल सकते थे कि जो l स्क्वायर है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू rn, है ना, यहां से. और फिर हम लोग बोल सकते थे एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ rn. Is it clear? Yes. Yes, sir. अभी हम लोग डाउट डिस्कस करना स्टार्ट करें या और क्वेश्चंस कर लें इससे रिलेटेड? So, all questions. डाउट ज्यादा नहीं है? एक मिनट है. मीनवाइल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बच्चे चाहे तो डाउट्स अपने इकट्ठे कर लें यार, है ना. हम लोग डाउट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, है ना. और तुम लोग को डाउट्स नंबर्स में होने भी चाहिए थे ठीक ठाक. देखो मैं एक क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर करता हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना तुम लोग के बुकलेट या मॉड्यूल से ही है वो क्वेश्चन. एक मिनट मैं शेयर करता हूं तुम लोग के साथ. हाँ देखो किसी किसी बच्चे को बहुत सारे डाउट्स भी हैं, तो ये एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद फिर डाउट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ठीक. सो मैं एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ट्राई करना तुम लोग अभी. लेट्स से दिस क्वेश्चन इज, ये तुम लोग की बुकलेट या मॉड्यूल से ही है ये क्वेश्चन. इन बोर्ड्स मॉडल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम following symbols are used. जैसे RNZ है radius of nth orbit and atomic number Z. UNZ है potential energy of electron. KNZ है kinetic energy. VNZ है velocity. TNZ है time period of revolution. तुम लोग को ये बताना है मैट्रिक्स मैच में ए का आउट ऑफ PQRS क्या आंसर है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है ना. या तुम लोग वन बाय वन पहले मुझे ए का आंसर भी बता सकते थे पहले. शायद देखो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे होते तो ए का तुम लोग को कैलकुलेट भी करने की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगा और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में आएगा. तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई PQRS में? ए ऑप्शन का Q का P, सिर्फ Q ही हो सकता था, वही नेगेटिव है ना. तो मैं ए पार्ट शायद तुम लोग को करके दिखाता हूं, बाकी तुम लोग ट्राई करेंगे, है ना. सो ए पार्ट में वी ऑलरेडी नो, लेट्स से U12 जहां मेरे पास Z का वैल्यू 2 है और N का वैल्यू 1 है, शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -13.6. हम लोग चाहते तो एग्जैक्ट वैल्यू भी रिलेट करने की कोशिश कर सकते थे, है ना. U12
z का वैल्यू इसमें 2 है, z का वैल्यू 2 मींस इट विल बी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ये है मेरे पास u12 एंड k1, 1 शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस है, सो प्लस 13.6 एंड इट इज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। अब अगर इन दोनों का रेशियो लेना होता हम लोग को u12 डिवाइड बाई k11, ये इफेक्टिवली आ जाता -8:1 है ना, ये इफेक्टिवली आ सकता था -8:1। सो ए ऑप्शन का आंसर तो पक्का पक्का क्यू है। सर बी वाले का आर है क्या? ऐसा बी बता सकते हो? सर बी का एस है, एस है, QSR है। हाँ ऐसे अच्छा बी का क्या है? एस, S 8:1। बी का सी का S, आर है, सी का आर सी का आर है सर सी का आर है और और डी उसका P। डी का ऑब्वियसली एक ऑप्शन बच गया मेरे पास पी है ना। नो ऑब्वियसली जो प्रोपोर्शनलिटी फार्मूले हम लोगों ने पढ़े उसके बेस पे क्वेश्चन किया भी जा सकता था है ना। बस थोड़ा सा वो याद हो जाना चाहिए कौन किसके प्रोपोर्शनल था।